Okay, students, we will do chapter number 5 through this video. Right now, please take your novels also with you. As we read in chapter number 4, that there were that Mr. David was going to work in Mr. Quennan's office, who was working in Murdstone and Company. So now what Mr. Murdstone decided in chapter number 4, that he would be working with Mr. Quennan in his office, right? Now, and he will be living in lodgings, and he has to live in rent basis in some other house. Now we will read about David's life in chapter number 5, and the name of the chapter is Mr. Micawber. He is a very important character over here. So he is very important character. We will read about this character in this chapter, right? So there were 3 other boys in the office. So as I told you, जो Mr. Quinn's office है उसमें 3 other boys are also working over there. I did not like them. तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो बॉयज. आई वॉज वेरी अनहैप्पी. वी वर्कड अंटिल 12 on the first day. At 12 o'clock, Mr. Quinnan called me into his room. I went in and found there a small fat man. Please underline this line कि that जब मैंने अंदर मुझे मिस्टर क्विनन ने अंदर बुलाया 12 o'clock, right? So after the work, I was called in a room, and who was waiting there? There was a small fat man in a brown coat. His name was Mr. Micawber. Please underline this name. The question can come, describe the appearance of Mr. Micawber. Mr. Micawber was a small fat man in a brown coat. This, said Mr. Quinnan, is a boy. So Mr. Quinnan now asked कि ये boy है? This. So Mr. Micawber with a curious Solomon politeness. So what do you mean by Solomon? Here formal politeness means उसने अपनी थोड़ी सी अच्छी सी politeness दिखाई. Okay, this is Master Copperfield. Who is Master Copperfield? David. I hope that you are well, Master Copperfield. Now उसने डेविड से हालचाल पूछा. I said that. तो डेविड ने कहा I was very well and hope that he was. And उसने कहा कि hope कि तुम भी अच्छे हो. I am, Mr. Micawber. Thank heaven very well. कि शुक्र है भगवान का, I am very well. I have had a letter from Mr. Murdstone in which he asks me to receive you in my house in a room विच इज़ नॉट बींग यूज एट प्रेजेंट. तो मिस्टर मर्डस्टोन ने मुझे लेटर भेजी. उसमें क्या लिखा उसने कि जो मेरे घर पे रूम नहीं यूज हो रहा, राइट, कि वो रूम किसको देना है? टू डेविड. ठीक है. योर लॉजिंग्स आर एट मिस्टर मिकॉबर हाउस. तो तुम्हारी लॉजिंग्स कहाँ पे है? मिस्टर क्वीन ने बताया कि तुम कहाँ पे रहने वाले हो? एट मिस्टर मिकॉबर्स हाउस. माई एड्रेस सेड मिस्टर मिकॉबर इज विंडसर हाउस, सिटी रोड. इन शॉर्ट आई लिव देयर. तो प्लीज अंडरलाइन दीज लाइन ऑल्सो कि दैट कि what is the address of Mr. Micawber? Windsor House, City Road. Okay, question can come in your paper. I believe that you may not yet know all the streets of this great city. कि शायद तुम्हें इन गलियों के बारे में इतना नहीं पता होगा इस टाउन की. May have difficulty in discovering the house in which I live. तो maybe you will be having difficulty, right? तो as where I was living, maybe you have difficulty in finding my house. In short, you may lose yourself. कि तुम अपने आप को गुम कर सकती हो. So I will come and show you the way this evening. तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा and I will show you the way this evening. तो ये शाम मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा अपना. Mr. Micawber put on his hat and marched away. He came back in the evening and led me to his house. तो evening में वो मुझे अपने घर पे लेकर गया. There I found Mrs. Micawber with 4 children. Please underline this. तो Mr. Micawber is living with Mrs. Micawber, his wife, and 4 children. Okay. I never thought when I was at home with my father and mother. तो मिसेस मिकॉबर जो उसकी वाइफ है वो डेविड को क्या कह रही है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि when I was living with my father and mother means before marriage मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कभी अपना घर रेंट पे भी देना पड़ेगा, राइट, कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अब खराब है. दैट्स वाई वी आर just giving our house, giving our one room on rent. But Mr. Micawber has difficulties about money. कि मेरे husband को, Mr. Micawber को कुछ difficulties हैं money के regarding. The people to whom he owes money will not give. He owes money means जिसको उसने पैसा देना है. The people to whom he owes money, right, जिसको मिस्टर मिकॉबर ने अभी पैसे देने हैं, राइट,
ही इज नॉट गिविंग हिम इनफ मनी, तो वो उसको इनफ मनी नहीं दे, इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं मनी देने के लिए. पुअर मिसेस मिकॉबर. तो नाउ डेविड इज थिंकिंग दैट कि बेचारी मिसेस मिकॉबर, शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर हस्बैंड. तो वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अपनी हस्बैंड की हेल्प करे. देयर वॉज अ नोटिस ऑन द डोर, मिसेस मिकॉबर स्कूल फॉर यंग लेडीज. तो घर के बाहर उसने एक बोर्ड भी लगाया, मिस्टर दैट इज मिसेस मिकॉबर स्कूल फॉर यंग लेडीज, बट नो यंग लेडीज केम ओवर देयर. कोई नहीं आता था. सिर्फ कौन लोग आते थे? जो पैसा मांगने आते थे. इस पैराग्राफ में यही लिखा है, इट इज रिटन ओवर देयर कि only the people who came at the house, right, only the people who wanted to take the money from Mr. Micawber, वो उस पे shout करते थे. They shouted at him in the street. At that time Mr. Micawber became very sad, और वो बहुत उदास होता था. और what he said कि I would kill myself, kill, मैं अपने आप को मार दूंगा. But just half an hour, घंटे के बाद जब वो लोग चले जाते थे, वो ही जस्ट क्लीन्ड हिज शूज एंड वेंट आउट सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो बाहर गाना गाते निकल जाता था. राइट, हैप्पियर देन एवर मीन्स वो बहुत खुश हो जाता था उसके बाद. ये ऐसे ही करता था ऑलवेज मिस्टर मिकॉबर. पहले बहुत दुखी होता था, एकदम से बहुत खुश हो जाता था विदाउट एनी रीजन. मिसेस मिकॉबर वॉज अ सेम. मिसेस मिकॉबर की सिचुएशन सेम है. वो रोती रहती थी फ्लोर पे. राइट, एंड आई नेवर सॉ इवन आफ्टर 1 hour ऑल्सो, मैंने उसको खुश नहीं देखता था. और शी इज जस्ट टेलिंग मी स्टोरीज अबाउट हर फादर एंड मदर. वो पुरानी बातें अपनी करती रहती थी डेविड के पास. मिस्टर मिकॉबर वेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मील. तो वो मील से पहले कुछ रोता था. एंड देन उसके बाद वो हैप्पी सॉन्ग गाता था एट द एंड ऑफ इट. मीन्स खाना खाने से पहले वो रोता था. देन आफ्टर दैट ही जस्ट सैंग अ सॉन्ग. ही केम होम इन द इवनिंग क्राइंग एंड दैट नाउ नथिंग वॉज लेफ्ट. और जब वो शाम को घर पे आता था, ही जस्ट रोते हुए आता था. एंड व्हाट ही से कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, नथिंग वॉज लेफ्ट. एंड ही वुड बी सेंट टू प्रिजन. और वो कहता था कि अब मुझे जेल भेज दिया जाएगा. राइट, कि दैट एंड ही वेंट टू बेड. और उसके बाद वो जब बेड पे बैठता था रात को, और वो थोड़ा क्या करता था, हिसाब करता था. ही वॉज वर्किंग आउट व्हाट इट वुड कॉस्ट टू पुट न्यू एंड लार्जर विंडोज इन दी हाउस. एंड ही वॉज थिंकिंग दैट अगर घर पे लार्जर विंडोज लगाने तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट. तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. You can just see by reading this. So they began to sell their things so as to get food. तो अब उन्होंने, मिस्टर मिकॉबर की फैमिली ने कुछ चीज़ें बेचनी स्टार्ट कर दी फूड लेने के लिए. दे डेयर्ड नॉट कैरी देम आउट ऑफ द हाउस. बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी. दे डोंट डेयर कि वो अपनी चीज़ें बाहर लेकर जाएं. वाई? बिकॉज द पीपल आर वेटिंग आउटसाइड. बिकॉज द मैन टू हुम दे ओड मनी, जिनको लोगों को पैसा देना है उसने, वो उसको बाहर से देख रहे होंगे. अदरवाइज वो उनको स्टॉप कर देंगे, उसको रोक लेंगे. तो व्हाट डेविड हेल्प हिम. ठीक है, डेविड उनकी हेल्प करता था. ही कैरिड आउट बुक्स एंड पीसेज ऑफ सिल्वर इन माई पॉकेट. सो वो कुछ पीसेज ऑफ सिल्वर एंड बुक्स अपनी पॉकेट में रखता था, और अंडर माई कोट, एंड ब्रॉड बैक द मनी, और वो मनी लेकर आता था. एट लास्ट द एंड केम. तो एंड आ जाता है, मिस्टर मिकॉबर को जेल भेज दिया जाता है. आई वेंट टू विजिट हिम देयर एंड हैड डिनर विद हिम. तो डेविड उसको जेल में मिलने जाता था, प्रिजन में मिलने जाता था. आई वेंट बैक टू मिसेस मिकॉबर. और मैं घर आके मिसेस मिकॉबर को भी कंफर्ट करता था, दिलासा देता था. ऑल द फर्नीचर वॉज टेकन अवे एक्सेप्ट अ फ्यू चेयर्स एंड टेबल. वी लिव्ड अमंग दोज फॉर सम डेज. Then Mrs. Micawber went to live in the prison, and I went and lived near, and I used to spend the evening in the prison with the Micawbers. So what is written over there? कि सारा फर्नीचर उनके घर से वो ले गए हैं लोग. राइट, एक्सेप्ट अ फ्यू चेयर्स और टेबल बच गई हैं. एंड वी लिव्ड अमंग देम. और हम उन चीज़ों के साथ ही रह रहे थे. देन मिसेस मिकॉबर भी जेल में चले गई. एंड मैं कहाँ, डेविड कहाँ गया? डेविड ने जेल के पास, प्रिजन के पास एक घर पे रहना स्टार्ट कर दिया, किसी और के घर में. राइट, एंड एट लास्ट द मिकॉबर्स वर सेट फ्री. और एट लास्ट जब मिकॉबर्स को जेल से फ्री हुए, राइट, देन they came and stayed for some time in the house where I was. तो जहाँ पे डेविड रह रहा था वहाँ पे वो भी स्टे किया उन्होंने. राइट, एंड बिफोर दे वेंट अवे टू द प्लाईमाउथ. प्लीज अंडरलाइन दिस नेम. तो अब मिस्टर मिकॉबर वॉज प्लानिंग टू गो टू प्लाईमाउथ विद हिज फैमिली. राइट, तो जब मैंने उनके साथ डिनर किया, देन आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट वेंट टू डिनर विद देम. एट द एंड ऑफ द डिनर मिस्टर मिकॉबर मेड अ स्पीच.